morning, wow kids. How are you today? I hope you all are fine. So kids, have you washed your hands? It's fun to wash your hands, and I know you understand. So we washy, clean, scrub, scrub. We start with washing palm to palm. Between each finger, let us rub. Now the back of the hands, it's such a simple plan. We washy, clean, scrub, scrub. Clean the base of the thumbs one by one. Then the back of the fingers, this is fun. Don't forget your fingernails, it's about details. We washy, clean, scrub, scrub. Now move on to the wrist, let us rub. I think we're nearly done, so now what? Just rinse the soap away, dry our hands and we're okay. We washy, clean, scrub, scrub. So we washy, clean, scrub, scrub. We washy, clean, scrub, scrub. It's fun to wash your hands, and I know you'll understand. We washy, clean, scrub, 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 scrub. So kids, now we're going to start morning prayer. Join your hands and close your eyes. Thank you God for the word so sweet. Thank you God for the food we eat. Thank you God for the birds that sing. Thank you God for everything. One more. Om Bhurbhuvah Swaha Tasviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. So kids, now we will start national anthem. Jani Gane Mane Adinayak Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravid Utkal Banga Vindhya Himachal Yamuna Ganga Uchal Jaladhi Taranga Kabhi Shubh Naame Jage Kabhi Shubh Ashish Mage Gaye Tab Jaya Gatha Jani Gani Mangal Dayak Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Jaya He Jaya He Jaya He Jaya 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 He Jai Hind Jai Hind. So kids, आज का वेदर कैसा है? Today is the sunny day. Very good. So kids, now we will start days of the week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Sunday is the holiday. So now kids, we will to start month of the year. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and last December. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Hi everyone, I'm Taranko. Will you sing the Mool Mantra with me? Hot cross buns. Hot cross buns, hot cross buns. 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. If you have no daughters, give them to your sons. 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. Hot
cross buns. Hot cross buns, hot cross buns. One a penny, two a penny, hot cross buns. If you have no daughters, give them to your sons. One a penny, two a penny, hot cross buns. Rain, rain, go away, come again another day. Little Johnny wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again another day. Little Johnny wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again another day. Little Johnny wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again another day. I just want to play. Rain, rain, go away. One more. Humpty Dumpty sat in a wall. Humpty Dumpty have a great fall. All the king's horses and all the king's men could not put Humpty Dumpty together again. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Couldn't put Humpty together again. Couldn't put Humpty together again. One more time. Jack and Jill went down the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown and Jill tumbling after. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. Next rhyme. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb whose fleece was white as snow. Everywhere that very went, the lamb was sure to go. Next rhyme. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went. Everywhere that Mary
मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, पानी में डाले तो तैर जाएगी। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, पानी में डाले तो तैर जाएगी। बटरफ्लाई योगा। ओके, तो बटरफ्लाई योगा कैसा होता है, उसमें हम बटरफ्लाई पोज बनाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो ये पोज किसके जैसे दिखता है, बटरफ्लाई जैसा। ओके, सो किड्स, हम जब भी योगा करते हैं, बटरफ्लाई योगा करते हैं, तो हमें एकदम स्ट्रेट पोजीशन में बैठते हैं। बैक को हमेशा एकदम स्ट्रेट, ऐसे नहीं बैठना है, एकदम स्ट्रेट बैठना है। और ब्रीथ इन एंड आउट एंड इन एंड आउट, इस तरीके से हम ब्रीथिंग करेंगे और स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से अपने पैर स्ट्रेट रखेंगे। ओके, एंड बैक भी। उसके बाद हम इस तरह अपने पैर ज्वाइन करेंगे। ये देखो, ये अपने इस तरह हील एंड टोस इस तरह से ज्वाइन करेंगे और धीरे 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 इस तरह पास लाएंगे। ओके, तो हमने इस तरह से पास लाकर और इसको ऐसे पकड़ेंगे और बटरफ्लाई जैसे इस तरह विंग्स करेंगे और साथ में ब्रीथ in and out and in and out, इस तरह। So kids again, okay? So कैसे करना है हमें, हमेशा बैक स्ट्रेट रखना है and breathe in and out and साथ में अपने legs, toes and heels इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे और इसको धीरे धीरे इस तरह पास लाएंगे और ऐसे पकड़कर हम बटरफ्लाई जैसे ऐसे फ्लाइंग करेंगे और साथ में ब्रीथिंग करना है इस तरह इन एंड आउट। सो किड्स, ये इस तरह से हम अपना बटरफ्लाई पोज योगा करेंगे। ओके, एंड डेली योगा करना चाहिए। योगा करने से क्या होता है, हमारी हेल्थ अच्छी होती है। ओके, Good morning, wow kids. Today we are going to learn about community helpers. तो ये किसकी पिक्चर है, ये है एक डॉक्टर। और डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स। और हम आज लर्न करेंगे कि डॉक्टर किन किन ऑब्जेक्ट्स को यूज करता है। ओके, तो अब ये 4 कॉलम्स है हमारे पास। तो डॉक्टर का फर्स्ट क्या होता है, डॉक्टर के पास होता है एक ऐसा बैग जिसमें उसके सभी वो यूज करता है अपने इक्विपमेंट्स। तो डॉक्टर के और आपने देखा होगा गले में क्या होता है, यहाँ पे डॉक्टर वियर करता है, उसको चेक करता है, इसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है, और डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर कई बार हमें इंजेक्शन भी देता है अगर हमें जरूरी होता है। तो वैसे तो मेडिसिन से ही हो जाता है, अगर कभी जरूरत पड़े तो हमें कभी इंजेक्शन की भी जरूरत पड़ जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है एम्बुलेंस। जब हम कभी खुद नहीं जा सकते तो हम हॉस्पिटल कॉल करते हैं और एम्बुलेंस आती है और हमें डॉक्टर के पास ले जाती है। तो हमने सीखा डॉक्टर का एक बैग होता है और उस पे ऐसा क्रॉस का साइन होगा, राइट। ये फर्स्ट एड बॉक्स पे भी होता है। सेकंड है स्टेथोस्कोप, थर्ड है इंजेक्शन और फोर्थ है एम्बुलेंस। एंड डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स बाय गिविंग मेडिसिन्स। नेक्स्ट हमारा कम्युनिटी हेल्पर है पुलिसमैन। तो पुलिस किस लिए होती है, हमारी सेफ्टी के लिए। और पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए क्या यूज करती है, सेम वही 4 कॉलम्स हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है गन।
तो पुलिस के पास गन होती है, अगर कभी जरूरत पड़े तो वो इसका यूज करते हैं। और जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है, किसी थीफ को अरेस्ट करती है या किसी ने कोई गलत काम किया हो, तो उसको वो अरेस्ट करने के लिए क्या यूज करेगी? हैंडकफ। इसको ओपन करके वो उसके दोनों हाथों में डाल देते हैं। ये देखो, ये है हैंडकफ। और जब पुलिस को बात करनी होती है तो वो क्या यूज करते हैं? वॉकी टॉकी। जैसे पुलिस एक कॉर्नर पे खड़ी है और सेकंड कॉर्नर पे करना है तो वो उनके पास एक वॉकी टॉकी होता है जिससे वो अपने एक और एजेंट से बात कर सकते हैं। और पुलिस के पास क्या होती है? अपनी पुलिस कार। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि पुलिसमैन जो है वो हमारी सेफ्टी करते हैं और उसके लिए वो यूज करते हैं गन, हैंडकफ, वॉकी टॉकी और उनकी पुलिस कार। नेक्स्ट हमारा कम्युनिटी हेल्पर है फायरमैन। और फायरमैन क्या करता है? जहां बहुत ज्यादा आग लग जाती है उसको वो कंट्रोल करता है। और उसके लिए वो क्या क्या यूज करेगा? क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक काम है ना, डेंजरस काम है, फायर लगी होगी। तो फायरमैन को एक हेलमेट होती है उसकी इस तरह से, और उसने क्या पहने होते हैं? ऐसे शूज जो उसके फीट को प्रोटेक्ट करते हैं कि फायर से। ओके, तो उसके एक स्पेशल शूज होंगे। और फायरमैन के पास क्या है जिससे वो पानी फेंकेगा आग पे? वो होगा एक रोल पाइप का, बहुत लॉन्ग होता है और जिससे प्रेशर से वो पानी फेंकते हैं आग के ऊपर। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पानी से हम नहीं उस पर डायरेक्टली डाल सकते। मान लो कोई इलेक्ट्रिकल वायर है या कोई स्विच है, कोई इलेक्ट्रिकल कोई थिंग्स हैं जिन पे फायर लगी हुई है, फिर क्या करेगा फायरमैन? अगर पानी डालेगा तो उसको शॉक लग जाएगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स। ओके, और नेक्स्ट क्या है जो फायरमैन जिसमें आते हैं? वो होती है उनकी फायर ब्रिगेड की एक ऐसी ट्रक जिसमें उनके सारा ये सामान होता है। उनका पाइप होता है उसमें, और इसमें ही वाटर टैंक भी होता है जिससे वो पानी डालते हैं। तो हमने आज सीखा फायरमैन के बारे में। So wow kids, we are going to learn about flowers name. तो फर्स्ट फ्लावर है हमारा रोज। तो रोज कौन से कलर का होता है? रेड कलर। और रोज है ना बहुत सारे कलर्स में मिलता है, येलो, पिंक, बहुत सारे कलर्स में हमें मिलता है। नेक्स्ट फ्लावर है लोटस। तो लोटस कौन से कलर का होता है? पिंक कलर का। और ये कहाँ पर होता है? वाटर में। नेक्स्ट फ्लावर है सनफ्लावर। कौन सा फ्लावर है? सनफ्लावर। और सनफ्लावर कौन से कलर का होता है? येलो कलर। और इसकी शेप क्या होती है? सर्कल, और ये सन की जैसे दिखता है ना। नेक्स्ट फ्लावर है मैरीगोल्ड। तो मैरीगोल्ड कौन से कलर का होता है? ऑरेंज कलर का। और इसको किस में यूज लेते हैं? जब हम पूजा करते हैं ना तो मंदिर में लेते हैं हम यूज। नेक्स्ट फ्लावर है लिली। तो लिली भी क्या है? बहुत सारे कलर में मिलता है। ओके किड्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो व्हाट इज द कलर ऑफ सनफ्लावर? तो सनफ्लावर का कौन सा कलर होता है? येलो। तो इसका आंसर क्या होगा? येलो कलर। सेकंड क्वेश्चन है विच फ्लावर वॉज लाइक्ड बाय चाचा नेहरू? तो चाचा नेहरू को जानते हो आप? चाचा नेहरू को कौन सा कलर था? रोज। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ लोटस फ्लावर? तो लोटस, ये लोटस का कलर कौन सा होता है? पिंक। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है? पिंक। हेलो वाओ किड्स। तो किड्स आज हम सीखेंगे गुड मैनर्स। तो गुड मैनर्स पता है? अच्छी आदतें। गुड मैनर्स मीन्स होता है अच्छी आदतें। तो फर्स्ट है वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो हमें मॉर्निंग में हमेशा जल्दी उठना चाहिए। ओके किड्स। नेक्स्ट है ब्रश योर टीथ ट्वाइस डेली। तो हमें 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, मॉर्निंग में और नाइट में। ओके। तो नेक्स्ट है हैव बाथ रेगुलरली। और हमेशा डेली बाथ लेना चाहिए। ओके।
नेक्स्ट है कॉम योर हेयर डेली, तो हमें डेली कॉम करना चाहिए, अपने बालों को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। ओके किड्स। नेक्स्ट है टेक 3 मील्स ए डे, तो आपको 3 टाइम मील्स लेना चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ओके। नेक्स्ट है वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील, तो आपको खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमेशा हैंड वॉश करने चाहिए। नेक्स्ट है कट योर नेल्स रेगुलरली, तो आपको टाइम टाइम पर रेगुलर नेल्स कट करवाने चाहिए पेरेंट्स की हेल्प से। नेक्स्ट है शेयर योर टॉयज, तो हमें अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा टॉयज को शेयर करना चाहिए। ओके। तो नेक्स्ट है गो टू स्कूल ऑन टाइम, और हमें स्कूल हमेशा टाइम पर जाना चाहिए। ओके। नेक्स्ट है रेस्पेक्ट योर टीचर, तो हमें टीचर की हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए और उन्हें गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून विश करना चाहिए। नेक्स्ट है ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, तो हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए टाइम टाइम पर। ओके। नेक्स्ट है एक्सरसाइज डेली, और हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे वो 2 मिनट की हो चाहे 3 मिनट की। ओके। नेक्स्ट है कीप द टॉयलेट क्लीन, तो आपको हमेशा अपने टॉयलेट को क्लीन एंड नीट रखना चाहिए। तो नेक्स्ट है रेस्पेक्ट यूर एल्डर्स, और हमें अपने से बड़ों की हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट है से थैंक्स यू, तो हमें जब कोई गिफ्ट देता है और कोई हेल्प करता है तो थैंक यू बोलना चाहिए। नेक्स्ट है फिनिश योर होमवर्क रेगुलरली, और हमें अपना होमवर्क हमेशा फिनिश करना चाहिए रेगुलर। ओके। नेक्स्ट है हेल्प अदर्स, और हमें अपनों बड़े से सभी की हेल्प करना चाहिए। ओके। तो किड्स नेक्स्ट है गो टू बेड अर्ली, तो आपको नाइट में जल्दी सो जाना चाहिए। ओके। तो किड्स आज हमने क्या सीखा? गुड मैनर्स। तो किड्स हमें हमेशा अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। ओके। तो वाओ किड्स, हमारे पास यहाँ पर है 2 मिस्ट्री बैग। इन मिस्ट्री बैग में अलग अलग शेप हैं, तो जिनको आपको फील करके इन दोनों में से सेम शेप निकालने हैं आपको। ओके किड्स, स्टार्ट करें। तो आपको देखना नहीं है, इसमें से शेप निकालते हुए आपको फील करके शेप निकालना है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके का शेप निकाला है, और आपको दूसरे मिस्ट्री बैग में से भी फील करके इस तरीके का शेप निकालना है। ओके किड्स, तो हम नेक्स्ट मिस्ट्री बैग में से निकालते हैं। ऐसा ही शेप फील करना है हमें। फील करते हैं कि कौन सा निकलता है शेप। तो हमने यहाँ पर दोनों सेम शेप निकाल लिए हैं। तो आपको फील करके दोनों मिस्ट्री बैग में से सेम शेप निकालना है। ओके। अब हम नेक्स्ट शेप निकालते हैं। तो हम निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट मिस्ट्री बैग में से ये वाला शेप निकाला है, तो हमें सेकंड मिस्ट्री बैग में से भी ऐसा ही शेप फील करके निकालना है। ओके। तो हम निकालते हैं फील करके। सेकंड मिस्ट्री बैग में से निकलता है, नहीं निकलता? तो ये निकल गया, दोनों सेम शेप है ना। तो आपको ऐसे ही फील करके दोनों बैग में से मिस्ट्री बैग में से फील करके निकालना है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा शेप निकलता है हमारे मिस्ट्री बैग में से। हमने निकाला है यहाँ पर ये वाला शेप। ओके। तो सेकंड मिस्ट्री बैग में से भी देखें कि ये वाला शेप निकलता है, नहीं निकलता? तो आपको फील करना है और ऐसा ही शेप निकालना है। तो देखो देखो देखो, तो हमने यहाँ पर दोनों सेम शेप निकाल लिए हैं। ओके। मजा आ रहा है आपको ये एक्टिविटी करने में? तो अब हम देखते हैं इसमें से कौन सा शेप निकलता है फर्स्ट वाले में से। तो फर्स्ट वाले मिस्ट्री बैग में से हमने ये वाला शेप निकाला है। अब सेकंड में से देखते हैं ये वाला शेप निकालना है हमें। तो आपको फील करना है हर शेप में कि ये वाला शेप कौन सा है। देखते हैं देखते हैं देखते हैं। तो हमने दोनों शेप सेम निकाल लिए। ओके। सो किड्स, हम नेक्स्ट निकालते हैं कि कौन सा शेप निकलता है मिस्ट्री बैग में से। तो हमने यहाँ पर ये वाला शेप निकाला है, तो आपको फील करके दूसरे वाले मिस्ट्री बैग में से ये ही वाला शेप निकालना है। ओके। तो मैं फाइंड कर रही हूँ कि कौन सा वाला शेप निकलता है। तो ये वाला शेप निकला है, तो हमारी दोनों शेप सेम है। ओके। तो अब देखते हैं मिस्ट्री बैग में शेप है या नहीं कोई और। तो हमारे मिस्ट्री बैग तो यहाँ पर एम्प्टी हो गए हैं।
तो किड्स आप लोग घर पर ऐसे 2 मिस्ट्री बैग बना सकते हो और इसमें सेम चीजें डाल सकते हो और आपको फील करके फाउंड करना है और दोनों सेम शेप निकालनी है। ओके किड्स? हेलो माय डियर किड्स, तो ये है आपका होमवर्क। इसमें आपने माई एक्टिविटी बुक 1 जो प्ले ग्रुप के लिए होगी, आप जब इसे ओपन करोगे तो अभी हमने जो वर्कशीट्स की हैं वो डोमेस्टिक एनिमल की हमने फ्रूट्स की वर्कशीट की हमने, और हमने लेटर ए किया। तो अब आपने क्या करना है, एक्टिविटी शीट नंबर 8, इसमें बॉडी पार्ट्स हैं। यहाँ पे आपको बॉडी पार्ट्स दिए हुए हैं जैसे हैंड, आईज, टीथ, नोज, ईयर और लेग। तो आपने ये फाइंड आउट करने हैं इस बॉडी में से, ये पूरे बच्चे की जो बॉडी है इसमें से आप ये फाइंड करोगे और टिक करते जाओगे। ओके, फिर नेक्स्ट आपका है एक्टिविटी शीट नंबर 9 का। 9 में क्या करना है, यहाँ पे हमें वेजिटेबल्स दी हुई हैं, डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स होंगी और इनके कलर्स भी होते हैं डिफरेंट। आपने सिर्फ ग्रीन कलर की जो वेजिटेबल्स हैं उनमें आप कलरिंग करोगे, जैसे ग्रीन कैप्सिकम, ग्रीन चिली एंड ग्रीन लेडी फिंगर। ओके, और नेक्स्ट आप करोगे एक्टिविटी शीट नंबर 10। ये कौन सी शेप है, ये देखो राउंड राउंड, ये है एक सर्कल की शेप। आप इसको क्रेयॉन की मदद से आप इसको पूरा ऐसे ट्रेसिंग कर दोगे और आप अपने फिंगरप्रिंट से अपनी फिंगर पे कलर लगा के जो आपके सर्कल्स हैं उनको आप कलर करोगे 1 and 2। ये है ओनली सर्कल शेप। ओके, आज हम करेंगे फिंगर प्रिंटिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। So let's see. First number is number 1. And what is the color of number 1? Red color. Right? तो अब हम क्या करेंगे, देखो ऐसे फिंगर से, अपने इंडेक्स फिंगर से इस तरह रेड कलर लगाएंगे और रेड कलर 1 के आगे हम रेड कलर से डॉट लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा नंबर 1। अब क्या करेंगे, नंबर 1 के बाद नंबर 2। एंड व्हाट इज द कलर ऑफ नंबर 2? येलो कलर। तो अब हम येलो कलर लेंगे, इस तरह अपने इंडेक्स फिंगर पे येलो कलर लेंगे और 2 डॉट्स लगाएंगे, 1 and 2. Next number is 3. And what is the color of 3? Green color. So अब 3 के आगे हम अपने इंडेक्स फिंगर से इस तरह 3 डॉट्स लगाएंगे, 1, 2 and 3. अब next number is 4. And what is the color number of 4? Brown color. तो हम अब ब्राउन कलर लेंगे इस तरह अपनी इंडेक्स फिंगर पर और 4 डॉट्स लगाएंगे, 1, 2, 3 and 4. And next number is 5. What is the color of number 5? Orange color. तो अभी हम ऑरेंज कलर लेंगे एंड कितने डॉट्स लगाएंगे, 5। तो हमने ये ऑरेंज कलर ले लिया और 5 डॉट्स लगाएंगे, 1, 2, 3, 4 and 5. Next number is 6. And what is the color number of 6? Pink color. तो इस तरह हम अपने फिंगर से पिंक कलर लेंगे और 6 डॉट लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Next number is 7.
And what is the color of number 7? Sky blue. So फिगर से इस तरह स्काई ब्लू कलर लेंगे और कितने डॉट्स लगाएंगे? 7. 1 2 3 4 5 6 and 7. Next number is 8. And what is the क्या कलर है नंबर 8 का? And next number is 8. And what is the color of 8? Yellow color. तो हम yellow color से कितने डॉट्स लगाएंगे? 8. 1 2 3 4 5 6 7 and last 8. And next number is 9. And what is the color of 9? Blue color. So अब हम ब्लू कलर लेंगे इस तरह अपने फिंगर पे और 9 डॉट्स लगाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 and last 9. अब next number is 10. And what is the color number 10? Yes, black color. So अब हम black color लेंगे and अपने फिंगर से black color लेके कितने डॉट्स लगाएंगे? 10 डॉट्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and last 10. So kids, your fingerprinting is complete. There once was a troll who guarded a bridge, wouldn't let you pass until you did what he said. And a special request went something like this: stand up, turn around, sit down. Stand up, sit down. Stand up, turn around, and now sit down. Stand up, turn around, sit down. But then he said you had to do it faster. Again said the troll who guarded the bridge, he wouldn't let you pass until you did what he said. And a special request went something like this: stand up, turn around, sit down. Stand up, sit down. Stand up, turn around, and now sit down. Stand up, turn around, sit down. But you had to do it faster. Can you do it faster? Again said the troll who guarded the bridge, he wouldn't let you pass until you did what he said. And a special request went something like this: stand up, turn around, sit down. Stand up, sit down. Stand up, turn around, and now sit down. Stand up, turn around, sit down. One more. Stand up,
Our today's story is The Lion and the Mouse. Once upon a time, there was a lion. And how the lion says? Roar. And you know, lion is the king of the jungle. One day, after his complete lunch, he felt asleep under a tree. Then a little mouse, squeak, 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 saw him and thought it would be a great fun playing on him. He started sliding and jumping on a sleeping lion. Squeak, 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 squeak. Squeak, squeak, yay! It's a great fun, yo! Then lion woke up angrily, roar. Lion said, "Who is this?" "A silly mouse." He grabbed the mouse tightly. Mouse tried to escape, but he couldn't, as lion grabbed him very tightly. Mouse was very scared. Oh no! Mouse said, "Oh king, I'm so scared. Please don't eat me. I'm so scared. Forgive me this time." Lion, maybe next time I can help you somehow. Please forgive me this time. Lion was very amused. He said, "How a little mouse can help me? Anyways, I have just eaten my lunch, so I'm not hungry. So I'm letting you go, mouse. Don't repeat this again. I'm warning you. Don't repeat this again." A mouse was very thankful to lion. He said, whenever the lion will need a help of a mouse, mouse will definitely there, right? And mouse ran away from there. One day, the lion was roaming around the jungle, and few hunters came there. You know what the hunters did? He set a strong net over the floor. Why? To trap the lion. Yes, they wanted to trap the lion. When they set the strong net over the floor, he started waiting for the lion. When the lion came, and we will trap the lion. Yes, they started waiting. Slowly, slowly, lion came over there. And what the hunters did? They pulled the rope, and lion stuck in the trap. Oh no, lion has stuck in the trap. It's really bad. Lion tried to move out from the trap, but it was quite strong. He couldn't able to get out from it. Oh no, lion is roar, roar, roar loudly, but he couldn't able to get out from the trap. He was very sad. He was very sad. Then mouse listened to the voice of lion. He's roaring for help. Lion said, "Help me someone." Mouse said, "The lion is asking for help. I must return his favor. He lived my life. I must save his life too." Then the mouse climbed up the trap, and the mouse have very sharp teeth. So by using his sharp teeth, he bite all the rope. Cut, 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 cut. He bite
all the rope for everywhere and freed up the lion. Cup, 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 cup. Wow, the lion was so happy. Now the mouse said, "Now you are free, lion." Lion was very happy. Lion says, "Mouse, you are very nice. You helped me and saved the life of King of the jungle. Now you are the prince." Lion said, "Now you can freely stay in my jungle and you can go anywhere in the jungle." The mouse says, "Thank you so much, lion. So sweet of you. Bye-bye. I'm going." Lion said, "Hey, mouse, where are you going? Would you like to jump or climb on me?" Mouse said, "Wow, can I?" Lion says, "Yes, you can." Now the mouse started jumping and sliding over the tail. He was so happy. So kids, what you have learned from the story of the lion and the mouse, that nobody is too small or too weak to help someone. If you want to help someone, we can use our strong points to help somebody. Okay? So, nobody is small or weak to help someone. You kids are very small. Mama, papa's big ones. So, if you want to help them, you can help. You can't wait to grow. You can help them. Right, my wow kids? Bye-bye. We will meet with another interesting story. Till then, take care.